Okay, fine. So today we will be starting the part B of the chapter. The first topic that we'll study is the electromotive force, EMF, EMF of a cell. Okay. Now, electromotive force is many a times used in comparison with voltage. Okay. इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स का भी यूनिट वोल्टेज है, वोल्ट्स, एंड पोटेंशियल डिफरेंस का भी यूनिट वोल्ट है. लेकिन इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स और पोटेंशियल डिफरेंस में फ़र्क ये है कि इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स आल्सो कंसीडर्स द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द बैटरी, whereas the potential difference does not consider the internal resistance of the battery. Okay, so potential difference is just about external, and electromotive force is external plus internal total. Okay, so electric cell maintains a constant difference in potential between two conductors called the electrodes or terminals by a chemical reaction to obtain a continuous flow of charge between them. Okay, so obviously अगर ये दो इलेक्ट्रोड है, कैथोड और एनोड, दोनों के बीच में एक पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन रहेगा, एंड द करंट विल स्टार्ट फ्लोइंग through these two electrodes. Okay, thus the cell stores the energy in the chemical form, and slowly the chemical is used up to produce electricity. यहाँ पे हम लोग ने लेड और जिंक का एग्जांपल दिया हुआ है. ये कॉपर इलेक्ट्रोड है और ये जिंक इलेक्ट्रोड है, एंड in the solution I'm having dilute sulfuric acid. Dilute sulfuric acid will produce a very high amount of sulfate ions and hydrogen ions. These sulfate and hydrogen ions are oppositely charged. Hydrogen is positive and sulfate is negatively charged. Okay, तो इसको हम लोग बोलते हैं नेगेटिव सल्फेट आयंस. ठीक है, और हाइड्रोजन आयंस आर पॉजिटिव. These negative ions, they will start flowing towards the positive electrode copper. Okay, और H plus जो पॉजिटिव है, it will start flowing towards the negative electrode zinc. यहाँ पे देखो पॉजिटिव नेगेटिव दोनों के बीच में अपने को दिया हुआ है. ठीक है, so therefore there will be this transfer, this flow of ions inside the solution. ठीक है, तो यहाँ पे एक potential difference will be obtained. That potential difference is called as electromotive force, EMF. इसका सिंबल अपने को ये दिया हुआ है. ओके, तो ये क्यों क्रिएट हो रहा है? बिकॉज ऑफ द डिफरेंस ऑफ द चार्ज ऑफ द नेगेटिव एंड द पॉजिटिव. ओके, सो उसका डेफिनेशन हम पहले देखेंगे. डेफिनेशन दिया हुआ है. व्हेन नो करंट इज ड्रॉन फ्रॉम अ सेल, when no current is drawn. Okay, now we are not connecting it to an external circuit. कोई भी external circuit, बल्ब, switch वगैरह किसी पे भी लगा हुआ नहीं है. Okay, when no current is drawn from a cell and when the cell is in open circuit. Okay, अभी अगर करंट ड्रॉ नहीं करे तो उसको मैं क्या बोलूंगा? ओपन, मतलब स्विच ऑफ है, कुछ भी बाहर का चीज कनेक्टेड नहीं है. अगर स्विच ऑन है तो हम क्या बोलेंगे? क्लोज सर्किट. The potential difference between the terminals of the cell is called its electromotive force, EMF. Okay, so potential difference is obtained when the circuit is switched, is closed. Okay, when it is switched on. लेकिन EMF यहाँ पे एक सेल पड़ा हुआ है, उसको हमने किसी भी एक्सटर्नल सर्किट से कनेक्ट नहीं किया है, तो अभी जो पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप होगा दोनों टर्मिनल के बीच में, उसको हम क्या बोलेंगे? EMF बोलेंगे. उसका सिंबल क्या होता है? ये एप्सिलॉन. ये E जो होता है इसको हम लोग बोलते हैं एप्सिलॉन, and the unit is again V only. Okay, so when a cell is connected in a circuit containing various electrical components, current flows in the external circuit वगैरह वगैरह. तो ये external circuit का भी बताया दिया है. ठीक है, कि वहाँ पर भी flow करने के लिए एनर्जी की जरूरत पड़ती है. The EMF of a cell is defined as the energy spent or the work done per unit charge in taking a positive charge around the complete circuit of the cell, in the circuit, outside the circuit, as well as in the electrolyte inside the cell. तो अज्यूम करो EMF का मतलब क्या हो? यहाँ पर एक पर्टिकुलर चार्ज है. ठीक है, यहाँ पर एक नेगेटिव इलेक्ट्रोड पे एक पॉजिटिव चार्ज है. अब ये पूरा यहाँ से जाएगा, फ्लो होगा, एक्सटर्नल सर्किट में जाके पूरा अपना जो भी काम है वो पूरा काम करेगा. काम करने के बाद वापस यहाँ पे आ जाएगा. वापस द इलेक्ट्रॉन विल फ्लो टुवर्ड्स द पॉजिटिव इलेक्ट्रोड. वापस वो इलेक्ट्रॉन आ जाएगा इधर अपना क्या बोलते हैं सोल्यूशन के अंदर, और सोल्यूशन से फ्लो होने के बाद वापस इधर आएगा. सेम पॉइंट, coming back to the same point again. So this particular work done per unit charge, work done divided by charge, that will give me EMF. Okay, तो यहाँ पे हम क्या बोलेंगे कि ये एक्सटर्नल सर्किट है और ये इंटरनल सर्किट है, बैटरी के अंदर का सर्किट. एक्सटर्नल सर्किट का एक्सटर्नल रेजिस्टेंस रहेगा और इंटरनल सर्किट का इंटरनल रेजिस्टेंस रहेगा. सो EMF में एक्सटर्नल इंटरनल both of them are calculated. In potential difference only the external is calculated. Okay, we are not concerned about the internal. यहाँ पे क्या चल रहा है अपने को जरा भी आइडिया नहीं है. But in EMF, electromotive force, we will be considering external as well as internal. Okay, so the formula for EMF epsilon naught will be work done per unit charge, work done upon charge. Okay, तो यह हो जाएगा उसका very easy
formula. Okay. Now next topic, factors affecting the EMF of a cell. Okay, how can we change the EMF? It first depends upon the material of the electrode. तुम कौन सा electrode इस्तेमाल कर रहे हो? Copper, zinc, bronze, ठीक है, gold वगैरह क्या इस्तेमाल कर रहे हो? Then it depends upon the electrolyte. तुमने अंदर क्या डाले? सल्फ्यूरिक एसिड डाले हो, नाइट्रिक एसिड डाले हो, ठीक है, क्या डाले हो अंदर? The distance between the electrode. If the distance is high, ये दोनों electrode बहुत दूर दूर रखे गए, then EMF will also be high. If the distance is less, then the EMF will also be less. Okay. And the amount of electrolyte. कितना electrolyte मैंने इसके अंदर mix किया है? How much of salt, how much of H2SO4 I'm mixing inside the water solution. Okay, so this is the 4 things on which EMF depends. अगर इन चारों में से कोई भी एक चीज चेंज होगा तो EMF भी चेंज हो जाएगा, ठीक है। और ये सेल को हम लोग क्या बोलते हैं? वोल्टैक सेल, ऐसे टाइप के इसको बोलते हैं। वोल्टैक सेल का EMF रहता है 1.08, लेक्लांचे सेल का रहता है 1.5, डैनियल सेल का रहता है 1.08. So these are the different types of cell and they have this much amount of EMF inside them. Okay. Next we're having terminal voltage. Now terminal voltage, as the name suggests, पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल के बीच में जो वोल्टेज है वो, सो इट इज अबाउट द एक्सटर्नल सर्किट. वी आर नॉट एट ऑल कंसर्न्ड अबाउट द इंटरनल सर्किट. सो यहाँ पर एक एक्सटर्नल सर्किट रेजिस्टेंस आर भी लगा हुआ है. देखो प्रीवियस केस में वो लगा हुआ नहीं था. प्रीवियस केस में वी हैड ओनली द सेल, वी डिड नॉट हैड द एक्सटर्नल सर्किट. यहाँ पर एक्सटर्नल सर्किट है, एक्सटर्नली वी हैव अटैच्ड आर, so that is called as a terminal voltage. So let's read the definition. When current is drawn from a cell, when the cell is in closed circuit, closed, open नहीं है, अभी current flow कर रहा है, the potential difference between the electrodes, the positive and negative electrodes, is known as the terminal voltage. So in this case, positive और negative के बीच में जो difference है, ये रहेगा terminal voltage V. That terminal voltage V is applied to the external resistance R. Okay. So the terminal voltage of a cell is defined as the work done per unit charge in carrying a positive test charge around the circuit connected across the terminals of a cell. Okay. Work done per unit charge in carrying a positive test charge around the circuit connected across the terminal. Okay, so therefore across the terminal, that's it. ये दो terminal के बीच का, internal we are not concerned. Okay. Yeah. So terminal voltage will define what? It is defining the potential difference between the external circuit. Okay. So next, उसका definition अपने को यहाँ पर भी दिया हुआ. अच्छा ये भी हम लोग पढ़ चुके हैं. Okay. So therefore I will say that the voltage V will be equal to W dash upon Q. This W dash is what? The total amount of work done to take the charge across the external circuit divided by the charge Q. So epsilon में W upon Q और V में W dash upon Q. तो बेसिकली पोटेंशियल डिफरेंस और EMF दोनों एक ही बात है, बट यहाँ पे वर्क डन क्या है? वर्क डन फॉर द इंटरनल एज वेल एज एक्सटर्नल सर्किट, और यहाँ पे W dash क्या है? वर्क डन ओनली फॉर द एक्सटर्नल सर्किट, नॉट फॉर द इंटरनल सर्किट. ओके, नेक्स्ट, वोल्टेज ड्रॉप इन अ सेल. सो वोल्टेज ड्रॉप का मतलब क्या होता है? अभी जब सपोज तुमने अगर एक बैटरी लगा दी एक वायर में, ठीक है, तो आफ्टर एवरी फ्यू लेंथ कवर्ड अप ऑफ द करंट, थोड़ा उसका वोल्टेज गिर जाएगा, थोड़ा उसके अंदर करंट गिर जाएगा, ठीक है. अगर तुम इतने लंबे वायर में अगर करंट फ्लो करोगे तो फिर थ्रू आउट द वायर करंट मेंटेन नहीं रहेगा. सो दैट वोल्टेज ड्रॉप, दैट फॉल इन द वोल्टेज इज कॉल्ड एज वोल्टेज ड्रॉप. एकदम सिंपल डेफिनेशन है उसका, ठीक है. So the energy which has already been spent, the energy which has already been used up, that is called as voltage drop. That is work done upon Q. Same thing. The work done in carrying a unit charge through an electrolyte is called as the voltage drop in a cell. Okay. So basically ये energy spent हो गया और हमें वापस ये energy नहीं मिल सकता, ठीक है. तो हम देखेंगे कि अगर एक बैटरी है तो बैटरी फॉरएवर नहीं चलता. कुछ टाइम के बाद करंट सप्लाई करने के बाद वो बैटरी खत्म हो जाता है. कार की बैटरी, ओके, मोबाइल की बैटरी, ठीक है, कोई भी चीज़ की बैटरी हो, उसको थोड़ा टाइम के बाद रिचार्ज करना जरूरी हो जाता है, क्योंकि वोल्टेज ड्रॉप में पूरा का पूरा वोल्टेज ड्रॉप होकर वो जीरो बन जाता है. ओके, नेक्स्ट, रिलेशनशिप बिटवीन EMF एंड टर्मिनल वोल्टेज. बाय लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, द टोटल वर्क डन फॉर द चार्ज टू गो थ्रू एक्सटर्नल एज वेल एज इंटरनल इज W डैश एक्सटर्नल प्लस स्मॉल w इंटरनल. एक्सटर्नल इंटरनल दोनों को एडअप करके मुझे टोटल चार्ज, टोटल वर्क डन W मिल जाएगा. Divide each and every part of the equation by Q. So W upon Q is equal to W dash upon Q plus small w upon Q. So W upon Q total is equal to epsilon E, which is EMF. This W dash upon Q, this part W dash upon Q external, that is the voltage V, and W upon Q, that is the voltage drop V. ठीक है, वो सेल के अंदर हो रहा है, ठीक है, उससे सेल का जो पावर है वो कम होते जा रहा है, ठीक है. तो हम क्या बोलेंगे? तो एप्सिलॉन इज इक्वल टू कैपिटल V प्लस स्मॉल v, और आई कैन से दैट एक्सटर्नल वोल्टेज V इज इक्वल टू एक्सटर्नल पोटेंशियल डिफरेंस V इज इक्वल टू EMF माइनस
voltage drop. That's it. So this is a very important formula. In certain sums, they can give you the value for any two of the three, and they will be telling you to find the value for the third one. Like internal V, external V दोनों दिया हुआ है, तो EMF कितना है वो निकालो. या फिर EMF दिया हुआ है, internal voltage drop दिया हुआ है, तो फिर external potential difference कितना रहेगा वो निकालो. So they will be telling you to find different values for the voltage V. Okay, so next distinguish में क्या आता है EMF में? EMF is measured by the amount of work done in moving a unit positive charge in complete circuit. और यहाँ पे सिर्फ external circuit. It is a characteristic of the cell. Okay, वो cell के ऊपर depend करता है कि क्या ये है. यहाँ पे डिपेंड्स अपॉन द अमाउंट ऑफ करंट ड्रॉन फ्रॉम द सेल कि तुम्हारे एक्सटर्नल सर्किट में क्या लगा हुआ है. एक्सटर्नल सर्किट में अगर एक छोटा सा डिवाइस लगा है तो बहुत ही कम करंट खींचेगा वो. एक्सटर्नल सर्किट में अगर बहुत ही बड़ा एक डिवाइस लगा हुआ है तो ज़्यादा करंट खींचेगा वो. ओके, इट इज इक्वल टू द टर्मिनल वोल्टेज व्हेन नथिंग इज कनेक्टेड. ईएमएफ इज इक्वल टू द पोटेंशियल डिफरेंस व्हेन नथिंग इज कनेक्टेड. व्हाई? बिकॉज एक्सटर्नल तो कुछ है ही नहीं ना, तो पूरा का पूरा इंटरनल में ही जाएगा. एंड इट इज इक्वल टू द ईएमएफ ऑफ द सेल व्हेन द सेल इज नॉट इन यूज. ओके, ठीक है, while less than the EMF when cell is in use. Okay, तो potential difference can be max to max equal to the EMF, but potential difference cannot be greater than EMF. Why? Because EMF is the total value. Internal as well as external का plus मिला के EMF आता है. Okay, फिर internal resistance of a cell. Now resistance मैंने बताया था कि it is the blockage to the flow of current in a particular wire. सो ऐसा नहीं कि एक्सटर्नली सिर्फ एक वायर के अंदर ही ब्लॉकेज मिलेगा, एक सेल के अंदर भी ब्लॉकेज मिलता है. सेल के अंदर भी एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स आर प्रेजेंट एंड दीस एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स आर कंटिन्यूअसली ट्राइंग टू स्टॉप द करंट फ्लोइंग इनसाइड द सेल. So resistance offered by the electrolyte inside the cell to flow the current is called as internal resistance, and it is still given by the symbol ohm only, और उसका यूनिट क्या है? स्मॉल आर. तो कैपिटल आर क्या होता है? एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, और स्मॉल आर क्या होता है? इंटरनल रेजिस्टेंस. Okay, so therefore I can say internal voltage V will be equal to I into R, where I is the current and R is the internal resistance. तो उससे मुझे इंटरनल वोल्टेज मिल जाएगा कि सेल के अंदर वोल्टेज ड्रॉप कितना है, इंटरनल वोल्टेज कितना है. ओके, नाउ वी नीड टू ड्राइव द फॉर्मूले फॉर दैट. ये देखो सेम वैसे दिया कि कैसे सेल हम रेजिस्टेंस से कनेक्ट कर सकते हैं, तो बस दैट्स इट. तो ये हो गया सेल, और ये हो गया उसके बाजू में उसका इंटरनल रेजिस्टेंस. तो दोनों मिला के ये पूरा का पूरा एक सेल को रिप्रेजेंट करेगा. तो मैंने सेल को कैसे रिप्रेजेंट किया? उसका ईएमएफ का पार्ट मैंने अलग रिप्रेजेंट किया और उसका रेजिस्टेंस का पार्ट मैंने अलग रिप्रेजेंट किया. ओके, नेक्स्ट, रिलेशनशिप बिटवीन ईएमएफ, टर्मिनल वोल्टेज एंड इंटरनल रेजिस्टेंस. दिस इज द ईएमएफ ऑफ अ सेल, दिस स्मॉल आर इज द इंटरनल रेजिस्टेंस, and this capital R is the external resistance, and this V is the external potential difference. Okay, now total resistance I know because these two resistances are connected in series. देखो एक के बाद एक लाइन में लगा हुआ है. Total resistance will be capital R plus small r, and current I is equal to EMF upon the total resistance. EMF का वैल्यू क्या हो जाएगा? सिंबल क्या हो जाएगा? एप्सिलॉन, और टोटल रेजिस्टेंस कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर. टेक कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर एंड मल्टीप्लाई इट विद आई, टेक इट ऑन दैट साइड. एप्सिलॉन ई इज इक्वल टू आई कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर. ओके, नाउ आई नो जब ब्रैकेट खुलेगा तो ये कैपिटल आर और एक कैपिटल आई स्मॉल आर जाएगा. तो कैपिटल आर इज इक्वल टू कैपिटल वी, पोटेंशियल डिफरेंस, and capital I small r is equal to voltage drop, internal voltage. So epsilon is equal to capital V plus small v, or voltage drop V is equal to epsilon minus V. So we have derived the same formulas again that we studied previously over here. यही सेम 8.21 का जो फॉर्मूला है ना, यहाँ पे जो ब्लू में जो फॉर्मूला दिया हुआ है, वही सेम फॉर्मूले को मैंने अलग तरीके से प्रूफ करके मैंने यहाँ पर भी लेकर आ गया हूँ. ठीक है, इधर भी मैं लेकर आ गया हूँ. So next, internal resistance will be equal to internal voltage upon I. Internal voltage क्या है? Epsilon minus V upon I. I कितना है? V by R अपने को पता है. ठीक है, तो यहाँ पे स्प्लिटिंग करो तो E by V माइनस V by V तो 1 हो जाएगा, और ये जो डिनोमिनेटर का R है वो बाहर आएगा. तो इसी फॉर्मूले को सॉल्व करके मैं अलग अलग फॉर्म में लेके आ सकता हूँ ऐसा. ठीक है, now let us do one more topic. Factors affecting the internal resistance of a cell. इंटरनल रेजिस्टेंस किस पे डिपेंड करेगा? नेक्स्ट, सरफेस एरिया ऑफ द इलेक्ट्रोड. अगर इलेक्ट्रोड बहुत बड़ा है तो इंटरनल रेजिस्टेंस कम रहेगा, और अगर इलेक्ट्रोड बहुत छोटा है तो इंटरनल रेजिस्टेंस ज़्यादा रहेगा. इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल. देखो इलेक्ट्रोड अगर बड़ा है, अगर ये इलेक्ट्रोड इफ इट इज ग्रेटर इन साइज, ओके, सो इट इज प्रोवाइडिंग अ वेरी बिगर एरिया फॉर द चार्ज टू बी कलेक्टेड. तो आराम से चार्ज आ जाएगा, कोई रेजिस्टेंस है ही नहीं. और अगर इलेक्ट्रोड का एरिया एकदम छोटा है, पतला एरिया है, तो फिर ये करंट को ले नहीं पाएगा, तो इसकी वजह से इसका रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा. ठीक है,
Next, we are having the distance between the electrode. If the electrodes are very near, resistance will be less. आराम से the charge can jump, and if the electrodes are very far away, resistance will also be high. Nature and concentration of the electrode. ठीक है, तुमने electrolyte क्या डाले हो, sulfuric acid डाले हो, strong acid डाले हो, weak acid डाले हो. So it also depends upon what kind of chemical you are mixing inside the solution, and the temperature of the electrolyte. Higher the temperature, high is the internal resistance. लोअर द टेम्परेचर, लो इज द इंटरनल रेजिस्टेंस. जितना टेम्परेचर बढ़ाते जाओगे उतना इलेक्ट्रॉन अंदर के मॉलिक्यूल्स और जंप करेंगे, जितना जंप करेंगे उतना चार्ज फ्लो करने के लिए उसको रास्ता नहीं मिलेगा. ठीक है. Next topic is what combination of resistance. Now we can use resistance in different combinations. Either we can use one after another, which is called as series, or we can use in parallel, या फिर दोनों मिला के I can make it using series and parallel. So these are the three possible ways in which I can connect different resistors. तो पहले हम पढ़ेंगे कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स इन सीरीज. सीरीज मतलब क्या है, एक के बाद एक लाइन में रिले में लगा दिया मैंने, R1 R2 R3 लाइन में लगा दिया. ठीक है. तो बैटरी से जो करंट निकल रहा है, तीनों में से वही करंट फ्लो होगा. इधर से भी आई फ्लो हो रहा है, इधर से भी आई फ्लो हो रहा है, इधर से भी आई ही फ्लो हो रहा है. सो व्हेन द रेजिस्टेंस आर कनेक्टेड इन सीरीज, द करंट फ्लोइंग थ्रू देम आई इज द सेम. ओके, बट वोल्टेज सेम नहीं रहेगा. टोटल वोल्टेज देखो, टोटल वोल्टेज सप्लाइड बाय द बैटरी इज कैपिटल वी. उसमें से V1 इस्तेमाल हो गया पहले रेजिस्टेंस R1 में, वोल्टेज ड्रॉप हो गया. फिर V2 इस्तेमाल हो गया पहले रेजिस्टेंस, दूसरे रेजिस्टेंस R2 पे, और फिर V3 इस्तेमाल हो जाएगा तीसरे रेजिस्टेंस R3 पे. ठीक है. जैसे फॉर एग्जांपल मैं एग्जांपल देता हूँ. अगर बैटरी प्रोवाइड कर रहा है 9 वोल्ट का, ये क्या बोलते हैं, वोल्टेज, तो पहला 3 जाएगा इधर, 6 बचा. दूसरा 3 जाएगा इधर, लास्ट 3 बचा, वो इधर यूजअप हो जाएगा. इसके बाद यहाँ पे और एक और रेजिस्टेंस लगाने के लिए अगर अपन लगा देंगे, अगर हम लगा भी देंगे, तो वहाँ से कुछ वोल्टेज उसको मिलेगा ही नहीं, कुछ पावर उसको मिलेगा ही नहीं. दिस इज द रीजन व्हाई वी कैन नॉट यूज वन सिंगल बैटरी टू पावर एवरीथिंग. Okay, because after covering a certain length, the voltage will drop. Okay, so therefore I can say that VA is greater than VB is greater than VC. ठीक है. तो सबसे ज़्यादा वोल्टेज ए में रहेगा, क्योंकि यहाँ पे तो अब तक कुछ भी इस्तेमाल नहीं हुआ है. यहाँ पे 9 था, फिर यहाँ पे 6 हो गया, फिर यहाँ पे 3 हो गया, फिर यहाँ पे 0 हो गया. तो VA इज बिगर, VB इज उससे छोटा, VC इज उससे छोटा, VD इज उससे छोटा. तो ऐसा करके वोल्टेज विल गो ऑन फॉलिंग स्मॉलर एंड स्मॉलर. ठीक है. एंड V1 विल बी इक्वल टू हाउ मच, VB माइनस VA करो, तुमको V1 मिल जाएगा. V1 क्या है, R1 पे जो वोल्टेज लगा है उसको हम लोग बोलेंगे V1. V2 क्या है, VC माइनस VB, और V3 क्या है, VD माइनस VC. So that can be used to find the value for the different voltages. So the current has a single path, so hence the current will be same, and the potential difference will be different. V is equal to V1 plus V2 plus V3. So depending upon कितना resistance मैंने लगाया, वो dotted dotted चलता जाएगा. So expression for the equivalent resistance. First of all, I know that V1 is equal to what, VA minus VB, and V का फॉर्मूला क्या है, IR. तो IR1. V2 क्या है, VB minus VC, और वोल्टेज का फॉर्मूला क्या है, IR. तो अगेन इन दिस केस बिकॉज इट इज V2, IR2 एंड IR3. हम लोग ने I1 I2 I3 इसलिए नहीं लिए क्योंकि देखो करंट तो सेम ही है. I1 जो R1 से जा रहा है वही R2 से जा रहा है, वही R3 से जा रहा है. करंट का कोई दूसरा रास्ता नहीं है. सो वी डोंट हैव I1 I2 R3, वी हैव जस्ट द वैल्यू फॉर I. ओके. टोटल वोल्टेज V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3. ठीक है. V1 के बदले IR1, V2 के बदले IR2 और V3 के बदले IR3. तो सब में से तुम I कॉमन निकाल दो, तो I कॉमन बाहर, R1 प्लस R2 प्लस R3, एंड टोटल V विल बी इक्वल टू VA माइनस VD. तो टोटल स्टार्टिंग से एंडिंग पॉइंट तक का मुझे मिल जाएगा. Also the total voltage V, which is equal to VA minus VD, is equal to I into RS, where RS is the series resistance, total resistance, combination of all the resistance taken together. Okay, so hence I can say that RS का value क्या रहेगा, RS का value रहेगा R1 plus R2 plus R3. Okay, so if you connect all the resistance in series one after another, then the total value for the resistance will go on adding up, it will go on piling up. ये 2 ओम पे ये 2 ओम जुड़ जाएगा, वो 2 ओम जुड़ जाएगा, और रेजिस्टेंस धीरे धीरे बढ़ते जाएगा. तो अगर हम सीरीज सेटअप यूज कर रहे हैं, इन सीरीज सेटअप द रेजिस्टेंस ऑफ द वायर विल गो ऑन इंक्रीजिंग. पैरेलल में हम देखेंगे द रेजिस्टेंस ऑफ द वायर विल गो ऑन डिक्रीजिंग. ओके. तो अगर मेरे पास एक ऐसा सेटअप है जहाँ पे मुझे ज़्यादा से ज़्यादा रेजिस्टेंस चाहिए, कम से कम करंट चाहिए, तो वहाँ पे मैं सीरीज सेटअप का इस्तेमाल करूँगा. ठीक है. Fine. So I'm ending this lecture over here.